are divided into three categories according to our intellectual. Hello. Hello. Am I audible? Yes, you are continue. audible. Okay. Accordingly, our intellectual for 50 marks and our cultural and recreation activity and our personal trait. Then Rupinder ma'am announced the activities and give the brief of the rules and regulation of the events, because rules are very important. They plays a major role. By these only we can develop a good quality among us, which was given by the which was of Dr. Which was given by Dr. Nina ma'am. She told us the story of Dr. Ma'am told us the story about Meena Chanu, gold medalist. Sorry, I pronounced the wrong name about her. Mirabai Chanu. How she changed the challenges into an opportunity, and she gained the gold for our country. Sorry, silver for our country. Yesterday was a very learning session. Hope upcoming session will also give us the learning about our future. Thank you. Thank you. Very good. Good morning, Kaushik sir. So we welcome Dean College Development Council. Sir, अपना unmute कीजिए. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Okay. That's nice. अब confirm हो गया कि आप जुड़ चुकी हैं. We can start the program. काफी देर से ज्वाइन किया डॉक्टर साहब. हाँ नहीं वो मतलब कि But I'm sorry, मैं थोड़ा लेट था. No, I'm so it's sorry. okay, sir. It's okay, sir. It's okay. Now I request Dr. Nirmal Singh Joraji to address us. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਤਾ. ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਸੇਠ ਪਜਨੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਤਾ ਧਮਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ. ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਔਰ UBS ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ. ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਨੂਅਲ ਫੀਚਰ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਕਦੇ ਨੌਣੀ, ਕਦੇ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ. ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੀਨਾ ਸੇਠ ਪਜਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਤਾ ਧਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 9 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬਲਾਸ ਹੀਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, SCD ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ BCM ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ. ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ. ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ GPSC ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲੌਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਆ ਲਾਹੌਰ, ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਸੇਠ ਪਜਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ. ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਉੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਹਿਣਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ,
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਹੈ ਮਹਿਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਹੈ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਨੀਨਾ ਸੇਠ ਭਜਨੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੜੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵੇ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 206 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਦੇ ਵੀ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ 150 ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 424 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 1-2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। Very much, sir. Now I formally introduce our present resource person. Our resource person of the day is well-known personality of Punjab University, Dr. Sanjay Kaushik ji. Sir is currently working as professor in the Department of Business and Management. Additionally, he's serving the university as a Dean College Development Council. His field of research is human resource management, journal management and banking. He has published several national and international research papers in reputed journals. He is also working as a reviewer for reputed professional journals. He marked in the scientific community with the contributions and widely recognition from honorable subject experts around the world. Dr. Sanjay Kaushik has received several awards for his contributions to the scientific communities. Thanks for sparing time to join with us, sir. Now I request sir to share his thoughts and guide us. Over to Dr. Sanjay Kaushik. Thank you so much, Dr. Monita, and thank you for making me join this program. And believe me, whenever we hear Dr. Nirmal Jodha, of course, he has already said this, that we have very close relationship with each other. But believe me, as a man, when we talk to Dr. Nirmal and when we interact with him, when we are together in these kind of programs, what a player to listen to him, what a player to see to him. And same goes with the principal of the college, DPCLR, Ma'am Nina Seth Pajni. I always say that if we want to learn what positivity is, if we want to see what the energy we call as, if we want to actually have the kind of relationships we need to have, I would say all these students who are associated with this program, see
look, follow and admire Dr. Nirmal Jora and Dr. Neena Seth Pajni both. They should be the role models. Because the students, it's a long program, as I have been told, because I know the students would have different kind of interactions with Dr. Nirmal as well as Dr. Neena Seth Pajni as well. Learn it, and then you will see that how the life makes a difference. और as Dr. Nirmal said, मैं अभी लिस्ट एक बारी देखा मैंने, 250 के करीब इस वक्त भी लोग जुड़े हुए हैं, और जो मेरी स्क्रीन पे what I am able to see is most of probably I have not gone through the list who they are, but most of them seem to be women, the girls. और जैसे अभी डॉक्टर निर्मल ने बताया ना कि कितने ही कॉलेजेस, कितने ही लोगों की इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, तब जाके ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है। और पहले ऑफलाइन होता रहा, इस बार ऑनलाइन करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 120 की बजाय हम लोग 300, 400, 500 तक की लिस्ट भी ले पा रहे हैं। और मैं इस प्रोग्राम में जुड़ पाया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच। और यकीन मानिए जिस एज ग्रुप को मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूं, और जो एज ग्रुप इतने सारे कॉलेजेस से, कॉलेज के स्टूडेंट्स जिस एज ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, आने वाला टाइम हिंदुस्तान किस तरफ जाने वाला है, वो अच्छे से जाएगा, वो खराब से जाएगा, हम लोग चीजें अचीव कर पाएंगे या हम लोग चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे, हम लोग इस देश को एक समृद्ध देश बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। कोई भी संकट जो आता है, जैसे अभी पीछे देखा कोरोना, पिछले तकरीबन 1.5 साल से पूरे वर्ल्ड के अंदर और खास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर इतना कहर मचाया है, हम लोग इन चीजों से किस तरह से डील कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है कि जो जनरेशन जिसके साथ हम लोग इस वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो मेरे सामने 250 लोग बच्चे बैठे हुए हैं, या जो सब लोग जुड़े हुए हैं, या जो इस एज ग्रुप के लोग हैं, ये सब लोग क्या सोचते हैं, ये लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये लोग कैसे एक्ट करते हैं, ये लोग किस तरह से आने वाले समय में अपने आप को लेकर चलेंगे, वही दिशा और दशा बताएगा हिंदुस्तान की। आप यकीन मानिए, ये देश अच्छा या खराब, ये हम लोगों की वजह से नहीं होने वाला, आने वाले समय के अंदर ये आप लोगों की वजह से होने वाला है। कौन परिवार अच्छे से रहेगा, कौन परिवार केवल तंगी और परेशानी में रहेगा, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन सा शहर, कौन सा गांव, कौन सा स्टेट और कौन सा देश किस तरह से चलेगा, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। और आप यकीन मानिए, ये आप लोग भी जानते हैं, मेरे परिवार के अंदर हमारा बच्चा, आपकी एज का बच्चा किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करता है, वो परिवार की खुशी या परिवार के दुखों को बड़े आराम से बता देता है। वही चीज स्कूल की है, वही चीज कॉलेज की है, वही यूनिवर्सिटी की है, और वही समाज की है, हमारे जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस देश के अंदर हम लोग रहते हैं। तो अपने आप को, आप यकीन मानिए, अपने आप को अगर हमने सही कर लिया, अपने आप को अगर हम लोग सही डायरेक्शन में ले गए, केवल अपने आप को मैं कह रहा हूं, अगर हम लोग सही डायरेक्शन में ले गए, तो यकीन मानिए हिंदुस्तान का जो आने वाला समय है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत कष्ट होता है, आप यकीन मानिए, बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है, और समझ नहीं आता कि किस तरह से रिएक्ट करें जब हम लोगों को बार बार ये पता लगता है कि पंजाब से, पूरे हिंदुस्तान से, लेकिन खास तौर पे पंजाब से, जब हमारा स्टूडेंट, आपकी एज ग्रुप का स्टूडेंट हिंदुस्तान में ना पढ़ने की बजाय फॉरेन में, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और अलग अलग कंट्रीज में जाने को आतुर बैठा है, वहां पढ़ना चाहता है, और अगर फ्लाइट्स आपकी नहीं मिल रही, तब भी आप कई कंट्रीज के थ्रू होकर भी कोरोना काल के अंदर आप वहां जाना चाहते हैं, जब ये पता लगता है कि
3-3 गुना किराया देके भी हम लोग कनाडा के अंदर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए, मैं तो डीन कॉलेजेस की हैसियत से काम कर रहा हूँ, अभी बताया भी गया आप लोगों को कितना कष्ट होता होगा, हम समझते हैं। मैं इस चीज से, और हम लोग जो इस वक्त टॉप मान लीजिए एजुकेशन के अंदर आप लोगों से डील करते हैं, हम लोगों को मालूम है शायद हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं कमी है, शायद हमारी नर्चरिंग में कहीं ना कहीं कमी है, शायद हम लोग वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं जो आप लोगों को मिलनी चाहिए, शायद हम लोग वो काम भी नहीं कर पा रहे जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है। मैं समझता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उसके बाद अगली बात करूंगा। उसके बावजूद भी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा परिवार सही नहीं है, मान लीजिए मेरे पेरेंट्स मान लो मुझे बहुत प्यार नहीं करते, मान लो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं दिया, मान लीजिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत पैसा नहीं दिया और फॉरेन में या हिंदुस्तान के बहुत बढ़िया कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में मैं नहीं पढ़ पाया, मान लो मुझे घूमने फिरने के लिए इतना पैसा नहीं दिया गया, तो क्या मैं अपना परिवार छोड़ दूं? क्या मैं अपने फैमिली को छोड़ के साथ पड़ोसियों में रहने लग जाऊं? क्या मैं किसी और परिवार में चला जाऊं? नहीं, बहुत कष्ट होता है, आप यकीन मानिए, जब हमें यह पता लगता है कि हमारा बच्चा, और उससे भी ज्यादा कष्ट होता है जब ये बड़े फखर के साथ ये कहता है कि जी मैं तो कनाडा पढ़ने जा रहा हूं, कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहा हूं, और मैं तो न्यूजीलैंड, और मैं तो आइलेट्स की तैयारी कर रहा हूं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमारी कमियां हमें मालूम है, हमारे इस देश के अंदर जो कमियां हैं हमें मालूम है, मेरे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर भी जो कमियां हैं वो मुझे मालूम है। उसके बावजूद भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं, इस कॉलेज को, इस शहर को, इस देश को छोड़ के नहीं जाना है। ये आपका है, इसको बनाइए। यकीन मानिए, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपका जोश, आपका जज्बा, वो आपके कॉलेज और आपके शहर और इस देश को कहीं भी लेके जा सकता है। वो जोश दिखाइए, आप वो दिखाइए, आपके पूरे हिंदुस्तान को बदल सकते हैं आप जानते हैं, मुझे मालूम है आप मैक्सिमम पंजाब से हैं। पंजाब के अंदर तो एक कहावत है बड़ी, आपके एज ग्रुप के लिए है, और यकीन मानिए जब मैं ये बात करता हूं एज ग्रुप की, तो मेरे लिए और हमारे लिए, लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। वो ताकत के एंगल से भी और हर तरह के एंगल से भी। मैंने तो आजकल जितनी वीडियोस और ये सब कुछ हम लोग देखते हैं, विमेन की ताकत कौन इग्नोर कर सकता है? वो चाहे परिवार में है और चाहे परिवार के बाहर है, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए उस ताकत को दिखाइए, और वो ताकत आप यकीन मानिए, यहां पे द बॉयज आर आल्सो देयर। आप यकीन मानिए, इवन फिजिकल हेल्थ के अंदर आजकल लड़के और गर्ल्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आप फिजिकली भी अगर बात करेंगे, अगर आप उस तरह से भी कंपटीशन की बात करेंगे, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन ताकतवर है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप कम नहीं है किसी भी एंगल से। तो पंजाब में कहावत क्या है, जिस एज ग्रुप में आप हैं उस एज ग्रुप के लिए, वो कहते हैं जो हमारे घुटने हैं, जिसको हम लोग नी बोलते हैं और पंजाबी के अंदर बोलते हैं गोडा, इस एज में, जिस एज के अंदर आप लोग हैं, इस एज में इंसान में इतनी ताकत होती है कि गोडे को जमीन पे मारो, जमीन से पानी निकल आए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना ये ऑनलाइन प्रोग्राम खत्म हुआ, बाहर चले गए, गोडा जमीन पे मारा, कि क्या यार, क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इतनी ताकत है आपके अंदर के, गोडा मारेंगे जमीन से पानी निकाल सकते हैं। और कभी कभी मजाक में मैं कहता होता हूं कि आप जिस एज में आप लोग हैं, मैं निर्मल जी बैठे हैं, मैम बैठे हैं, मैं मुझे लगता है थोड़ा सा
लाइटर मोड में उसको उसी तरह से लेना। आपको जिस एज में आप लोग हैं ना, वो इस एज में लोग तरह तरह की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं जब एक वो लड़का और लड़की जब वो साथ में बैठे होते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हें चांद तारे दिलवा दूंगा और मैं तुम्हें चांद तारों तक ले जाऊंगा। कोई गया आज तक? किसी ने दिलवाया आज तक? नहीं दिलवाया। सब बातें, सब बातें। लेकिन आपको मालूम है वो ऐसा इसलिए हुआ कि किसी ने कहा ही नहीं कि अच्छा जा लेके आओ चांद तारे। आप यकीन मानिए, आप कहिए तो आपको ऐसा शख्स जरूर मिलेगा जो आपके लिए वो चांद तारे इस जमीन पर लेके आएगा। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। और अब मैं आपको एक चीज, यकीन मानिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं और आप, मेरी रिक्वेस्ट है उस पर अमल कीजिए कि जिस एज में आप लोग हैं आप अपना टारगेट बनाइए। क्या करना चाहता हूं मैं, कहां पे पहुंचना चाहता हूं मैं, 5 साल के बाद मैं कहां पे जाना चाहता हूं, मैं 10 साल के बाद मैं कहां होना चाहता हूं, मैं 20 साल के बाद मैं कहां होना चाहता हूं। मैं तो बिजनेस स्कूल में पढ़ाता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिनको हम आईएम्स, बहुत बढ़िया बिजनेस स्कूल्स जिन्हें बोलते हैं। जब वो लोग एमबीए कर रहे होते हैं तो अपनी कंपनीज खोल चुके होते हैं। 22-22 साल के लड़कों ने नए नए स्टार्टअप्स खोले, लड़कियों ने नए नए स्टार्टअप्स खोले और कहीं से कहीं पहुंच गए। 30 साल की उम्र तक तो करोड़ों रुपए की वेल्थ कमा ली उन्होंने। 30 साल की उम्र क्या होती है? आज से 6-7-8 साल के बाद शायद आप लोग उस एज में पहुंच जाएं। आप सोचिए अपने लिए क्या मैंने करना है, कहां तक पहुंचना है और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, क्या मेरा एक्शन होना चाहिए, कितनी मैं पढ़ाई करूं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बच्चों क्या बचपन से शुरू होते हैं 8th क्लास में कि यार सब कुछ बहुत बढ़िया है, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है। और 12th के अंदर भी यार सब कुछ बहुत बढ़िया है, थोड़ी इंग्लिश में मार खा जाता हूं। वो बीकॉम भी पूरी हो गई यार, सब कुछ सही है, बस अंग्रेजी तंग कर रही है। वो पीजी भी खत्म हो गई यार, मैं सही था इंटरव्यू में, बस वो इंग्लिश मार। अरे जब पता है मान लीजिए कोई एक चीज तंग कर रही है तो इतने सालों से उसका हल क्या किया हमने। अगर कोई चीज मान लीजिए मेरे बस में नहीं आ रही है तो उसके लिए प्रयत्न क्या किया मैंने। अगर मुझे मालूम है कि मुझे एक बहुत बढ़िया अच्छे से कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और उसके लिए फलां फलां चीजें चाहिए, तो मेरी एफर्ट क्या है उसके अंदर। मुझे मालूम है मेरा परिवार के अंदर इस वक्त आर्थिक बहुत ज्यादा समृद्धि अगर नहीं है, बहुत पैसा मेरे परिवार में नहीं है, मैं एक यंग लड़का या लड़की हूं, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है उसके अंदर, मैं क्या कर रहा हूं अपने परिवार के लिए, कहां से मैंने क्या किया है जिसमें मैं उसकी हेल्प कर सकूं। या केवल बैठूंगा और सुनूंगा और देखूंगा और के परिवार वाले मेरे लिए क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग उस एज ग्रुप में आ गए जहां पे आपको अपनी जिम्मेवारियां समझनी होंगी। आप लोग उस एज ग्रुप में पहुंच चुके हैं जहां पर आप अपनी चीजों को दूसरों पे नहीं थोप सकते। मैं ये मानते हुए कह रहा हूं सब कुछ गलत है हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये मानते हुए कह रहा हूं सब कुछ गलत हो रहा है हम सबके साथ, उसके बावजूद भी कहता हूं कि आप लोगों को सामने आना होगा, आप लोगों को सामने आकर इन सारी चीजों को बदलना होगा, आप लोगों को इनिशिएट करना होगा। आपको इनिशिएट करना होगा अपने लिए, आपको अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी नौकरी के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए आप लोगों को सामने आना होगा। और अगर मैं ये चाहता हूं, अगर हम लोग सब ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान आने वाले समय के अंदर विश्व के अंदर एक सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, तो हम लोग केवल आप लोगों की तरफ देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग किस तरह से हमें लेकर जाओगे। कंधों की ताकत, ये शोल्डर्स की ताकत आप लोगों के अंदर है, बहुत दूर तक चलने की ताकत आप लोगों के अंदर है। हिम्मत के साथ देखिए, ये कोरोना के अंदर बहुत दिक्कतें हुई हैं, बड़ी समस्याएं हुई हैं, बड़ा परेशानी और एंड हालात यहां तक हो गए, पैसे लोगों के पास नहीं रहे, जानें चली गई, बीमार लोग हो गए, बहुत कुछ खोया है हमने इसमें। लेकिन उस खोने के अंदर
आप लोग आशा की किरण बन सकते हैं, आप लोग साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनकर अपने परिवार को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग कर सकते हैं, आप लोग सामने आकर अपने परिवार को संभाल सकते हैं, आप लोग सामने आकर अपने दोस्तों को, मित्रों को और रिश्तेदारों को संभाल सकते हैं। आप लोगों को सामने आना है। बहुत इस वक्त एक चीज अच्छी लगी इस दिक्कत के टाइम के अंदर भी, कितने लोग, मैं हैरान हो गया, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया, लेकिन कितना अच्छा लगा लोगों को देखकर। लोगों ने इस कोविड-19 के टाइम के अंदर पिछले 1.5 साल में कितने ही लोगों की मदद की, लोग सामने आए, लोगों ने, मैं हैरान हो गया, एनजीओज और आप जानते हैं परिवार खुद। मुझे लगता है जो बात मैं कर रहा हूं सब भुगत चुके हैं, किसी ना किसी के परिवार में कोई ना कोई कोरोना से पीड़ित हुआ, कई दिक्कतों का सामना हम लोगों ने सबने किया। और वो कुछ समय ऐसा होता है जिस समय खाना घर में नहीं बन पाता, जिस समय कोई ना कोई कोरोना से पीड़ित है, वो खाना बनाने का मतलब इन्फेक्शन और क्रिएट करना, इतनी वीकनेस लोगों के अंदर आ गई थी, वो किचन में खड़े हुए खाना तक नहीं बना सकते थे। तो कितने ही परिवारों ने खाना बनाकर, मैं हैरान हो गया। एक दिन मैंने किसी को फोन किया, अपने जानने वालों को, तो लगे कहने कि मैं अगर आपसे 10 मिनट में वापस बात करूं, विमेन थी, मैंने कहा क्या कहती, मैं ना पराठे बना रही हूँ एक्चुअली, भेजना है। तो मैंने कहा ऐसे कितने पराठे बनाती हैं? 200 हर रोज सुबह। एक लेडी किचन में खड़े होकर 200 पराठे बनाकर लोगों को, कि जी क्योंकि इस कोरोना काल में लोग बना नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं किचन में, और आप यकीन मानिए अच्छे से अच्छे घरों की बात कर रहा हूं मैं, उनको दिए गए। लोग सामने आए, लोगों ने हेल्प की, पैसे से हेल्प की, लोगों ने जो हो सकता था वो किया। लेकिन ये लोग चुनिंदा थे, ये लोगों की गिनती कम थी। हमारा प्रश्न है कि क्या हम उनमें से एक थे या हैं? क्या हमने इतने दुख की घड़ी में हमने भी कुछ किया? क्या हम भी सामने आए? क्या हमने भी लोगों को चाहे साइकोलॉजिकली मोटिवेट किया, चाहे फिजिकली उनकी हेल्प की, चाहे डॉक्टर्स के पास लेके जाने में हेल्प की, चाहे जैसे अभी मैं बता रहा हूं उनकी कुछ भी खाने पीने में, कुछ भी, क्या हमने हेल्प की? क्या मैं सामने आया? हमें सिचुएशंस के हिसाब से आगे बढ़ना है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस देश की रेन्स, इस देश की लगाम को अपने हाथों में ले लो। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस देश की लगाम को हाथ में लेकर सही डायरेक्शन में चलिए। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये हाय हाय, इसमें कुछ नहीं रखा। सामने आइए और इस चीज को थामिए, डोर को अपने हाथ में लीजिए, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। जो कमियां हैं उसको दूर करिए। झगड़ा नहीं करना हमने लोगों से, हमने कोई कॉलेज से उलझना नहीं है, हमने यूनिवर्सिटी से उलझना नहीं है, हमने हिंदुस्तान से उलझना नहीं है, लेकिन हमने जो चीजें खराब हैं उसको सही करना है। आप लोग कर सकते हैं। माइंड को शांत रखिए, अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखिए और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हुए पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच रखिए। क्योंकि ये आप यकीन मानिए, अगर आप लोग अप्रोच अपनी पॉजिटिव रख पाएंगे तो आप यकीन मानिए दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसको आप ठीक से डील नहीं कर पाओगे। अप्रोच पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी नहीं। बिल्कुल छोड़ दीजिए इस काम को कि वो खराब, वो खराब, कॉलेज खराब, मेरे दोस्त खराब, मेरे पड़ोसी खराब, मेरी यूनिवर्सिटी खराब, बिल्कुल नहीं। इस चीज को छोड़ दीजिए। नेगेटिविटी का अर्थ ही नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ तो सही होता है, वो चीजें देखने की कोशिश करिए। आप यकीन मानिए लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी भी, परिवार की भी और इस देश की भी। नेगेटिविटी केवल खराब करती है। आज की डेट में डिप्रेशन सबसे तेजी से फैल रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डिप्रेशन की, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की आ रही है, और कोरोना की वजह से और भी ज्यादा दिक्कतें आ गई हैं। लेकिन आप जानते हैं सबसे बड़ा उसका कारण क्या है? ये जो नेगेटिव सोच है हमारी, हर वक्त हम लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, ये आदमी खराब, वो आदमी खराब, बिल्कुल नहीं।
आप यकीन मानिए, अगर आप अपने दिमाग को दुरुस्त रखेंगे, अगर आप लोग सही डायरेक्शन में सोचेंगे, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, तो लाइफ की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप लोग झेल नहीं पाओगे। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, देखिए ये जो पॉजिटिव माइंड का फ्रेमवर्क है, कोई बहुत बड़ी इसमें मेहनत नहीं चाहिए होती। थोड़ा सा अपने आप को समझाना है, थोड़ा चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी रखनी है, थोड़ा सा अपने आगे बढ़ना है, थोड़ा इनिशिएटिव लेना है, थोड़ा लोगों को साथ लेके चलना है, और आप देखिए फिर। मुझे वैसे ही याद आ गया, एक चीज बताता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, जब हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे, मुझे आज भी याद है, एक दिन ऐसे ही बैठे हुए उन्होंने बात की कि यार हमारे घर में, उन्होंने कहा कि हमारे घर में कर्टेन्स, पर्दे नहीं है। तो अच्छा, उससे एक इंडिकेशन लगती थी शायद घर में पैसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर मुझे वो, तकरीबन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो 10-15 साल के बाद काफी अच्छा उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। आज की डेट के अंदर ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स ऑफ इंडिया। ही मूव्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ही हैज got a huge money with him, and तो हालांकि हमें इस चीज से बड़ा मजा नहीं आया, ही हैज सेटल्ड अब्रॉड, लेकिन यहां पे सब कुछ कमाने के बाद, पर अच्छी चीज ये है कि बाहर रहने के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ वो कर सकते हैं वो करते हैं। तो अगर मान लीजिए परिवार में पैसा कम है, तो भैया उसको कमाने की जिम्मेवारी आपकी है। अब आप इस एज में पहुंच चुके हो, सो इसलिए वो पढ़ाई अच्छे से करिए, एजुकेशन अच्छे से लीजिए, आगे अच्छे से बढ़िए। और एजुकेशन का मतलब केवल और केवल पढ़ाई से नहीं होता, उस पढ़ाई को अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए लेके जाना। देखिए क्लास में हम लोग कह देते हैं कि शायद एजुकेशन अच्छी नहीं है, 60 अगर स्टूडेंट्स हैं तो 60 में से 6 तो बहुत अच्छे नौकरी लग जाते हैं। तो भैया उन्होंने भी वही बीकॉम की है, उन्होंने भी वही एमकॉम की है, उन्होंने भी वही एमबीए की है, वही एमएससी की है उन्होंने। तो 60 में तो 6 अगर बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उन 6 में था ना। वो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त करना है, वो कुछ ना कुछ हमें अपने अंदर लेके आना है। नेगेटिविटी से दूर रहना है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने। दूसरा, जो मैंने आपसे कहा था, मेरी रिक्वेस्ट है, इस देश के ऊपर नाज कीजिए, इस देश के ऊपर प्राइड करो, इस देश को अपना समझना है। इस देश को ये मानते हुए कि ये मेरा है, इसकी लगाम अपने हाथ में लीजिए। और इस देश के करने के लिए जो पुराने हमारे, आप देख रहे हैं 1947 में हम लोगों को आजादी मिली, कितने ही बलिदान हुए हैं। वो ऐसे ही थोड़ी कर दिए थे कि हम लोग वो बलिदान करके चले गए, वो 20-20 साल की उम्र के अंदर वो फांसी पे झूल गए। आप लोगों की उम्र की बात कर रहा हूं, 20 साल की उम्र में फांसी पे झूल गए, किस लिए? कि हम लोग आके वापसी में सारी चीजें खराब करेंगे? नहीं, खराब नहीं कर सकते। सो उसको बनाइए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग अपने प्रोग्राम, आप लोग अपनी लाइफ, आप लोग अपनी जिंदगी को खुद तय करिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप कहां होने वाले हैं। उसके बाद उसके लिए एक्शन करिए, उसके बाद उसके लिए काम करिए। नेगेटिविटी से दूर रहिए, देश के ऊपर अपने नाश करिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज अपने इस घर को छोड़ के मत जाइए। प्लीज यहां पे रहिए, इसको संवारिए, और आने वाले समय के लिए तैयार रहिए। मैं एक आपको बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। एक छोटी सी स्टोरी है, मुझे बड़ी पसंद है। मैं तकरीबन वो बात हर जगह करता हूं। आपके साथ भी एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी कह के मैं अपनी बात को पूरे करूंगा। मुझे लगता है मैं शायद ज्यादा ही समय तो नहीं ले गया। एक
अगर आप लोग पहले मेरे साथ जुड़े हैं तो कभी जरूर सुनी होगी, ये अच्छी लगती है इसलिए बात कर रहा हूँ। एक कहते हैं कि समुद्र के किनारे किसी आदमी के बहुत सारे खेत थे, फील्ड्स, और समुद्र के किनारे खेत थे। प्रॉब्लम क्या थी कि समुद्र के किनारे खेत होने की वजह से बड़ी तेज हवाएं चलती थी, बड़ी आंधी तूफान आते थे। और क्योंकि आंधी तूफान इतने आते थे, तेज हवाएं चलती थी, वहां पे जिस आदमी के वो खेत थे, जो मालिक था, उसको खेतों में काम करने के लिए कोई मिलता नहीं था। कोई तैयार ही नहीं होता था वहां पे काम करने के लिए कि कौन करेगा यार, अभी इतने आंधी तूफान आते हैं वहां पे। तो किसी दोस्त ने सलाह दी, वो कहने लगा यार एक काम कर, अखबार में एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं दे देता, अखबार में ऐड कर दे तो कोई ना कोई तो मिल जाएगा काम करने के लिए, कोई ना कोई आ जाएगा। तो वही किया, उसने एडवर्टीजमेंट दे दिया अखबार में कि भैया मेरे समुद्र के किनारे खेत हैं, जो आदमी मेरे खेतों में काम करने के लिए तैयार है वो फलां फलां डेट को पहुंच जाए। और कहते क्या है कि जिस दिन उसने लिखा था कि मुझे आदमी चाहिए फलां फलां डेट को जो तैयार है पहुंच जाए, वहां कितने ही लोग इकट्ठे हुए। एडवर्टीजमेंट थी, कई सारे आ गए। अब आदमी चाहिए था एक खेतों में काम करने के लिए। तो उसने सोचा कि चलिए एक काम करते हैं, सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो क्वेश्चन का सही जवाब दे देगा उसको मैं रख लूंगा। तो सबसे एक क्वेश्चन पूछता, और क्वेश्चन क्या था, कैन यू स्लीप व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, कि क्या आप आंधी तूफान में सो सकते हो। तो उसने पहले आदमी को पूछा कि जी कैन यू स्लीप व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, कि क्या आप आंधी तूफान में सो सकते हो। तो जवाब मिला कहने सर हाउ कैन आई स्लीप व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, कि भैया मैं आंधी तूफान में कैसे सो सकता हूं। अब इस मालिक को लगा कि जवाब तो सही है, पर पता नहीं क्यों बंदा पसंद नहीं आया रखने के लिए, छोड़ दिया। दूसरे से क्वेश्चन पूछा, कैन यू स्लीप व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, सेम आंसर के सर हाउ कैन आई स्लीप व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, कैसे सो सकता हूं। अब उसने कहा यार जवाब तो इसका भी सही है बंदा, पर ये भी ठीक नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। सबसे क्वेश्चन पूछे सेम और सबसे आंसर मिला सेम। एंड में एक आदमी रह गया, उससे भी पूछा कि क्या आप आंधी तूफान में सो सकते हो, कैन यू स्लीप व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, और जवाब मिलता है कि यस सर आई कैन स्लीप व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, कि मैं आंधी तूफान में भी सो सकता हूं। अब इस मालिक को लगा कि यार ये जवाब तो सही नहीं है, कि भैया कैसे सो सकता है आंधी तूफान में, पर ये बंदा सही लग रहा है, इसको रख लेते हैं आप। रख लिया और वो खेतों पे काम करना शुरू हो गया। कहते हैं एक रात को क्या हुआ, ये मालिक अपने घर पे सोया हुआ है, ये नौकर जो है रखा गया था, ये अपनी झोंपड़ी में सोया हुआ है, और रात को बड़ी तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। जैसे ही आंधी तूफान शुरू हुआ, ये मालिक दौड़ के घर से बाहर निकलता है कि भैया गाय है, बैल है, भैंस है, इनको ठीक जगह ठीक से बांधना है, चारा है उसको ठीक जगह से रखना है। दौड़ के उस नौकर की झोंपड़ी में पहुंचता है और वो देखा आराम से सो रहा है। उसको उठाता, कहना उठ देख कितना आंधी तूफान आ रहा है, जल्दी से उठ, चीजें ठीक करनी है। कहना सर प्लीज मेरे को सोने दो। और मालिक ने फिर उठाया, कहना उठ देख भैया सब कुछ खराब हो जाएगा, गाय बैल भैंस को बांधना है, चारा ठीक जगह रखना है। नौकर फिर कहता है सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आंधी तूफान में भी सो सकता हूं, आई कैन स्लीप इन द स्ट्रॉन्ग, मुझे तंग मत करो आप। अब इस मालिक ने सोचा कि यार ठीक है यार, अब ये तो भैया नौकर है, ये जो कर रहा है सो कर रहा है, मेरा तो सारा सामान खराब हो जाएगा, मैं ही जाके बांध देता हूं। दौड़ता है बाहर के गाय बैल भैंस को ठीक से बांध दूं, चारे को ठीक से रख दूं। तो देखता क्या है, सब चीजें गाय बैल भैंस परफेक्टली बंधी हुई हैं, चारा अपनी सही जगह पे है, जो सामान जहां होना चाहिए था बिल्कुल परफेक्टली रखा हुआ है, और उस आंधी तूफान का कोई असर नहीं। तब इस मालिक को समझ में आया कि इस आदमी ने क्यों कहा कि जी मैं आंधी तूफान में भी सो सकता हूं, यस आई कैन स्लीप इवन व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, क्योंकि पहले से तैयारी, पहले से तैयारी की हुई है। आप लोग भी पहले से तैयारी करिए। आप लोगों को मालूम है कि आने वाला समय बहुत कंपेटिटिव है, आप लोगों को मालूम है कि आने वाले समय में नौकरियां बहुत थोड़ी हैं, आप लोगों को पता है हिंदुस्तान बहुत समृद्ध नहीं है, आप लोगों को पता है आपने बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन आप लोगों को यह भी पता है कि हिंदुस्तान में बहुत कम उम्र के अंदर ही लोगों ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिश किए, लोगों ने बहुत कम उम्र के अंदर भी बहुत बहुत पैसा कमाया, लोगों ने बहुत कम उम्र के अंदर भी बड़ी बड़ी खोज की, स्टार्टअप्स किए। तो मैं भी कर सकता हूं, और क्योंकि मैं भी कर सकता हूं, उसके लिए जो तैयारी है
इस कंपटीशन के दौर के अंदर भी वो मुझे करनी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आप इसी हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए, यहीं पे रहते हुए, आप अपनी तैयारी पूरी करोगे, आगे बढ़ोगे, और जो जो आप लोगों को अपने लिए चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अपनी स्टेट और देश के लिए चाहिए, वो आप जरूर पूरा कर पाएंगे। ऐसी आशा करते हुए और ऐसी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स देते हुए और ये आशा करते हुए कि हम लोग आने वाले समय के अंदर आपके सहारे इस हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाएंगे, और आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपका टैलेंट, आपका जोश और आपका जज्बा इस देश को हमेशा मुश्किल समय के अंदर बचाता रहेगा। और जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आएगी, आपका कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। ये आशा करते हुए मैं आप सबको मुझे साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ये आशा करते हुए कि हिंदुस्तान का आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। इतनी मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौतियों से भागने से तो चुनौतियां खत्म नहीं हो जाती। मैंने कल भी स्टूडेंट्स को कहा था कि आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, उनको छोड़कर ना भागे। आपने जो माइंड कंट्रोल की बात की है ना, तो आज मैं उसी स्किल को लेके आगे बढ़ूंगी। आपने मुझे दिशा दिखा दी है। वैसे सब कॉलेजेस के आप दशा और दिशा निर्देशक हैं और रोल मॉडल हैं, और मुझे आज पता चला सर आप बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अरे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं कहती हूँ बच्चों को आपने सच जो हमने 10 दिन में लाइफ स्किल्स सिखानी है वो आपने इतने शॉर्ट प्रिसाइजली इतने अच्छे तरीके से सिखा दी, तो मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद कहने के लिए। और स्टूडेंट्स जैसे कि मोनिता मैडम ने बताया कि सर डीन कॉलेज डेवलपमेंट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, ICSSR के डायरेक्टर भी हैं ऑनररी, और भी बहुत सी। सारा दिन देखा कि 200 कॉलेजेस को संभालना और रीजनल सेंटर्स का सरपरस्ती करना, सारा दिन कंप्लेंट्स एंड एवरी डे सब लोग तंग करते रहते हैं। हम प्रिंसिपल्स भी इनको ही तंग करते हैं। सिलेक्शन है, इंस्पेक्शन है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। और यूनिवर्सिटी में इतनी सारी पोजीशंस देखते हुए भी इतने काम माइंड से सर को हम जब भी बुलाते हैं, ही इज ऑलवेज रेडी। कभी भी आप इन्हें फोन कर सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं। मैंने सर के मुंह पे कभी ना नहीं देखी। तो सर जो आपको बता रही है ना, नेगेटिविटी नहीं रखना। सो जो नो है ना, वो नेगेटिविटी का पहला होता है, और यस पॉजिटिविटी का एक तरीका होता है। और सर बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। और सर जो आपको बात कर रहे थे, इन्होंने एज ए डीन और हम सब प्रिंसिपल्स क्योंकि इनसे शेयर करते रहते हैं कि बच्चे बाहर माइग्रेट हो रहे हैं, कॉलेज में एनरोलमेंट कम हो रही है। आप लोग भी जानते हैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स या आप लोगों की प्रायोरिटी भी एजुकेशन पे मनी स्पेंड करना नहीं है। डे टू डे लाइफ में देखो, एज ए प्रिंसिपल मैं देखती हूँ बच्चे अपने पास बहुत ही अच्छा सा मोबाइल रखते हैं, एंड दे आर स्पेंडिंग ऑन पिज्जास कॉस्ट 500 रुपीज। 500 का पिज्जा ले लेते हैं, पर 200 या 300 की बुक भी वो खरीदना नहीं चाहते। लाइब्रेरीज खाली पड़ी रहती हैं। हमने लाइब्रेरी में ऑल द AC फैसिलिटी लगवाई कि शायद AC की वजह से ही बच्चे वहां बैठकर पढ़ने आ जाएं, पर वहां बैठ के भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने मोबाइल पे वर्क करना चाहते हैं। तो ये जो चीज होती है ना कहीं एजुकेशन के लिए मनी स्पेंड करना कम कर दिया। और पेरेंट्स क्या करते हैं, 18 से 20 लाख रुपए खर्च करके बाहर बच्चे को भेजते हैं। कई बार तो वो वेल टू डू नहीं होते, जमीन गिरवी रखी या और जो भी, और फिर इस आस में कि वहां जाके बच्चा वो उन किस्तों को चुकाएगा और वहां जाके वर्क भी करेगा। और यहाँ रहते हुए बच्चों को ज्यादातर ना तो ऐसा कोई वर्क करना पड़ता है और सिंपल पढ़ना पड़ता है। यहाँ फीस भी इतनी नहीं होती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ हम लोगों में कमी रह गई एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, कि हम आप में वो मातृभूमि के लिए जज्बा नहीं पैदा कर पाए कि आपको मातृभूमि से प्यार नहीं है। और अब देखो कि आप देखो ओलंपिक्स में कितने लोग गए। जैसे सर बात कर रहे थे मातृभूमि की, जो ध्यानचंद थे, आजकल हॉकी अपनी मैन और विमेन टीम कहाँ चली गई है ओलंपिक्स में।
और जो ध्यानचंद है उन सब ने आप सबका नाम सुना होगा, उनका मैच देखने के लिए हिटलर भी आए थे और हिटलर ने उनसे पूछा कि आप किस पोजीशन पे इंडिया में वर्क करते हैं। वो आर्मी में थे, उन्होंने कहा मैं लेंस नायक हूँ। हिटलर ने उन्हें कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें मेजर जनरल बना दूंगा, पर तुम मेरी देश की तरफ से हॉकी खेलोगे। पर उसने मना कर दिया कि नहीं, वो अपने साथ ना देश की मिट्टी अपने साथ रखते थे। अभी आप रिसेंट एग्जाम्पल ले लो, वो तो आप कहोगे कि पुराने जमाने की बात होगी, तब तो बहुत ज्यादा देश का जज्बा था, लोग फांसी पे झूल जाते थे। अब आपने कल मैंने आपको मीराबाई चानू की स्टोरी सुनाई, जैसे सर कह रहे थे लड़कियां भी वीक नहीं है। ओलंपिक्स में देखो ना, चाहे आप पूरी हॉकी खिलाड़ी देख लो, जितनी भी टीम है, या फिर आप इसमें वेट लिफ्टिंग, डिस्कस थ्रो, आपको पता है पंजाब से ही आपकी कवलजीत कौर मुक्तसर से वहां गई, कितने लोगों ने चीयर अप किया, है ना। और आप लोग कई बार जानना तक नहीं चाहते। और अभी अभी जो हॉकी की कैप्टन है वो शाबाद मारकंडा से है, और एक राजप्रीत है लालपुर खालसा कॉलेज से है, वो भी हॉकी में है। और आप ये सब स्टोरीज देख सकते हो। तो जैसे जैसे सर बात कर रहे थे ना मातृभूमि की, तो प्रेजेंट का एग्जांपल देती हूँ। जो मीराबाई चानू है ना, ये अभी भी अपने साथ ना अपने राइस कैरी करती है, ये कहीं पे चले जाए खुद बॉयल करके खाती है कि मैं अपने देश का अन्न खाऊंगी तो एक्सेल करूंगी, अपने साथ अपने गांव की मिट्टी रखती है। तो ये जो चीजें है ना कहीं आपकी जो होती है ना रिस्पेक्ट, जब आप देते हो ना किसी चीज से, अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो, तो उसके गुण आप में अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह अपनी मातृभूमि को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो मातृभूमि आपको रेसिप्रोकेट करती है, वो आपको उस पोजीशन पे पहुंचाती है। ये आप अपनी लाइफ में आने वाले अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर करोगे, तो आप इसका फल पाओगे। ठीक है, तो सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। सर आपका आई एम थैंकफुल टू यू, दिल से धन्यवाद हम सब की तरफ से, डायरेक्टर so यूथ वेलफेयर की तरफ से, सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स, सबकी तरफ से। वी आर ब्लेस्ड एंड Thank you, sir. ऑनर्ड टू हैव यू हियर सर, एंड थैंक यू सो Thank मच। you, such a तो pleasure.